السلام علیکم. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کلیئر شیمپو ہر لمحہ پرجوش پریزنٹڈ بائی پیپسی اینڈ ڈالڈا. آج سیکنڈ سیمی فائنل تھا انڈیا ورسز انگلینڈ. بہت ہی تگڑا میچ جو ہے ہمیں دیکھنے کو ملا, لیکن ان دی اینڈ انڈیا ہیو ون دا سیکنڈ سیمی فائنل اینڈ دے ہیو کوالیفائڈ فار دا فائنل آف T20 ورلڈ کپ. انڈیا اور نیوزی لینڈ کا جو فائنل میچ ہے وہ 8 تاریخ کو احمد آباد میں کھیلا جائے گا. اور ایک نظر ڈالتے ہیں کہ انڈیا نے کب کب ورلڈ T20 ورلڈ کپ میں کوالیفائی کیا ہے. فائنل ان 2007, پھر فائنل ان 2014, فائنل ان 2024, فائنل ان 2026. زبردست اچیومنٹ. کانگریٹس ٹو بوتھ دا ٹیمز اور آل دا بیسٹ فار دا فائنل. بہت بڑا فائنل. ہم جیسے آج میچ ہوا ہے یہی ہم جو ہے میچ دیکھنا چاہتے ہیں. باسط بھائی, مزہ آیا میچ کا؟ جیسی کرکٹ ہم دیکھنا چاہتے ہیں, مطلب ہمارے ادھر نہیں, دنیا میں جو لوگ دیکھنا چاہتے تھے آج وہ میچ ہوا ہے. اور جیتا انڈیا ہے 7 رن سے, لیکن کرکٹ کی جیت ہوئی ہے. ویری ویل ڈن دونوں ٹیموں کے لیے. کامی, یہ تو ہمیں پتا تھا کہ ہائی سکورنگ میچ ہوگا, اور اس وینیو پہ جتنے میچز ہوئے ہیں وہ تقریباً یہی ہوتا ہے کہ بیٹرز کو جو ہے وہ سوٹ کرتی ہیں یہاں کی کنڈیشنز جو ہے. بولرز جو ہے ان کے لیے ہارڈ ٹائم ہوتا ہے, ظاہری بات ہے 250 پہ اگر 246 بنے گا تو وہ مشکل ہی ہوتا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ دونوں ٹیمز, میرے خیال میں بیٹنگ میں تو انہوں نے 100 آؤٹ آف 100 ملنے چاہیے, لیکن بولنگ اور فیلڈنگ میں تھوڑا سا فرق رہ گیا. بالکل ایسے ہی ہے, اور میرے خیال سے ایسا سیمی فائنل اس سے پہلے کبھی دیکھا نہیں. ہائی سکورنگ 253 رن 7 رن سے میچ ہارنا, زبردست سینچری. دونوں ٹیموں کی طرف سے بیٹنگ آؤٹ کلاس. بالنگ نظر آئی ہے کہ دونوں ٹیموں کے پاس ویک تھی, لیکن صاف فرق نظر آ رہا تھا بمراہ کا. بمراہ نے جیسے بالنگ کی ہے اور ساتھ فیلڈنگ جیسے انڈین ٹیم نے آج کی ہے نا, انبلیویبل اور ٹاپ کلاس کرکٹ ہوئی ہے. جتنا کریڈٹ ہم انڈین ٹیم کو دے رہے ہیں نا, میرے خیال سے اتنا ہی کریڈٹ انگلینڈ ٹیم کو دینا چاہیے کہ گیو اپ نہیں کیا انہوں نے لاسٹ بال تک. بہت اچھے. شاید بھائی آپ کی نظر میں ٹرننگ پوائنٹ کیا تھا اس میچ میں؟ دیکھیں, ٹرننگ پوائنٹ ایک سے زیادہ تھے. ایک تو 15 رنز پر سیمسن کا کیچ گرنا, وہ بڑا کروشل تھا. اس نے جس طرح اننگز کے لیے, اور بروک نے آ کے کہا کہ میں ہینڈز اپ کرتا ہوں, میری وجہ سے ایک بڑا کروشل کیچ گرا. پھر 18ویں اوور میں جسپریت بمراہ نے جو 6 رنز دیے نا, وہ کمال کا اوور تھا. ان کے 3 اوور میں 48 رن بنے انڈیا کے, ان کے 3 اوور میں 37 بنے. تو وہ ایک فرق ہو گیا, اور 18واں اوور بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھا اس میچ. باسط بھائی, سنجو سیمسن اگر جو ناک آؤٹ سٹیج والا میچ تھا اگینسٹ ویسٹ انڈیز, وہ اننگز اور آج کی اننگز اگر آپ یہ دیکھیں, اگر کوئی ان فارم ہو تو پھر اس کو اپنی فارم کا پورا فائدہ اٹھانا چاہیے, اور وہ آج دکھا. آپ بات کریں جو انگلینڈ ریلائی کر رہا تھا وہ تھا جوفرا آرچر پہ اور عدیل رشید پہ, یہ ان کے مین بولرز تھے. پھر جمی اوورٹن تھا, پھر اس کے بعد آپ ول جیک کی بات کریں یا سیم کرن کی آپ بات کریں, تو یہ وہ ہیں کہ ان سے اتنی زیادہ ایکسپیکٹیشنز نہیں ہیں. بٹ جس طرح وہ جوفرا آرچر کے اگینسٹ کھیلا اور عدیل رشید کے اگینسٹ کھیلا, کیا کہیں گے؟ ٹاپ کلاس بیٹنگ. شعیب بھائی, ایک 40 اوور میں 499 رن بن رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہے نا کہ کتنی ہی زبردست پاٹھا پچ تھا. اور بالر کی پٹائی ہوئی ہے, جوفرا کی بھی پٹائی ہوئی ہے, وہاں سے ورن چکرورتی کی بھی پٹائی ہوئی ہے. بیٹسمین شپ ڈومینیشن والا میچ تھا آج, لیکن انڈیا کو کریڈٹ جاتا ہے کیپٹنسی اور ان کی فیلڈنگ. جو کیپٹنسی میں اس نے 16واں اوور بمراہ سے کروایا, 18واں اوور کرایا, اس نے میچ کو بالکل ہی ون سائڈ کر دیا. میں لاسٹ اوور پہ تو آنا ہی نہیں چاہ رہا کہ 22 رن بنے ڈوبے کے, لیکن جو 16واں اوور اور 18واں اوور کرا وہ بریلینٹ کیپٹنسی. اور میرے خیال ہے میرا مین آف دی میچ بمراہ ہے, دیا گیا اس کو سنجو سیمسن کو. وہ سنجو سیمسن نے بھی کہا جب ان کو مین آف دا میچ ملا, تو انہوں نے بھی یہ بولا کہ ایکچوئل میں مین آف دا میچ آج کے میچ میں وہ بمراہ کو ہونا چاہیے, جو کروشل اوورز انہوں نے آ کے کرائے. کامی, آپ کو یہ لگتا ہے کہ آل راؤنڈرز یہ ہوتے ہیں؟ شیوان دوبے ٹھیک ہے انہوں نے ایک ہی اوور کیا لاسٹ والا آ کے, لیکن بیٹنگ میں کیا زبردست ان کو آج پروموٹ کیا گیا, ان کو اوپر بھیجا, کیپٹن نہیں آئے, اور انہوں نے آ کے جیسے عدیل رشید جن پہ انگلینڈ کی ٹیم ریلائی کر رہی تھی کہ ہمیں وکٹس دلائیں گے, وہ اچھا میچ اپ تھا. وہ بالکل زبردست تھا. میچ اپ نہیں تھا, وہ بیٹنگ آل راؤنڈر ہے, ہماری طرح بالنگ آل راؤنڈر نہیں ہے کہ ایک دم 4 پہ آ کے وہ ویسے امپیکٹ پرفارمنس وہ ایسی دکھائے. اور ایکسلنٹ ڈیسیژن, اور عادل رشید کو انڈر پریشر کیا. اگر دوبے وہاں پہ نہ آتا تو شاید اس کو 40 کے بجائے 30 رنز ہوتے, رنز کم ہو جاتے, ایک آدھی وکٹ اور لے جاتا.
تو दुबे ने वैसे ही वो खेला, वो तो रन आउट ना होता तो मेरे ख्याल से 270 प्लस रन हो जाने थे जैसे वो खेल रहा था. लेकिन ये है कि बुमराह की जैसे बॉलिंग है, विल जैक्स का जो कैच वहां पे टर्निंग पॉइंट मैं समझता हूँ. ठीक है संजू का कैच निकला, संजू तो आज पहले ओवर में ऐसे ही आया था कि जैसे कैलकाटा में 97 पे नेट आउट था ना, वहीं से उसने स्टार्ट किया, जीरो से नहीं किया. ऐसी फॉर्म लग रही थी और फॉर्म कितनी ब्लेसिंग है वो उसका पूरा फायदा उठा रहा है. तो बैटिंग क्लास नजर आई है दोनों टीमों की तरफ से, लेकिन बॉलिंग का जो आप कह रहे हैं फर्क नजर आ रहा है, सिर्फ फर्क देखें क्वालिटी है. क्वालिटी बुमराह के पास भी है ना, इसी पिच पे उसने बॉलिंग की है, ओवर करके दिखाए हैं ना. किस पे वो कामयाब रहा, 16वां और 18वां ओवर यॉर्कर की है उसने. यॉर्कर वाहिद है कि डेप्थ बॉलिंग में आप बचा सकते हैं, बड़ी हिट बचाने से उनसे भी नहीं लग रही थी. अगर वो यॉर्कर ना लगते तो शायद एक ओवर पहले मैच खत्म हो जाता. अगर थोड़े से शायद भाई पीछे मैचेस में चले जाएं तो सूर्या कुमार यादव से ना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल हुए कि मैं ओपन पे खिलाऊं उनको, मैं 3 नंबर पे खिलाऊं संजू सैमसन के बारे में. हमारे पास एक क्लिप है, शायद भाई श्रीलंका वो में दिखाते थे. हैं कि उन्होंने क्या कहा. स्टार्ट्स हमें नहीं मिल रहे हैं, क्या इस मोनोटोनी को तोड़ने के लिए संजू आ सकते हैं? कल भी हमने देखा काफी लंबा प्रैक्टिस सेशन जो है वो उनका रहा, काफी देर तक उन्होंने पेस वाले विकेट पर, स्पिन वाले विकेट पर भी काफी देर तक रहे. क्या हम आने वाले मैचेस में उनको देखेंगे खेलते हुए? मतलब आप बोल रहे हो मैं अभिषेक की जगह पे खिलाऊं उसको? नहीं, नंबर 3 में भी. तो मतलब तिलक की जगह खिलाऊं? अच्छा ही तो चल रहा है अभी पावर प्ले में. कहाँ 50 रन 40 रन तो बना ही रहे हो. जी शायद भाई क्वालिटी प्लेयर है, आप उसको ओपन खिला लें, 1 डाउन खिला लें. और उसने जिस तरह आईपीएल में अपने आप को ग्रूम किया, इस वर्ल्ड कप से पहले तो वो किसी गिनती में ही नहीं था, वो तो बेंच पे बैठा हुआ था. वो तो रिंकू सिंह के साथ एक ट्रेजेडी हो गई, वो गया वापस और संजू सैमसन आया और वहां से उसने पलट कर नहीं देखा. आउटस्टैंडिंग बैटिंग की है. बासित भाई हमेशा जो है ये डिबेट चलती रहती है संजू सैमसन पे, आपका क्या कहना है? मैं तो जो उसने 2 इनिंग्स खेल दी है ना, एक चेजिंग में और एक पहले बैटिंग करके, इनक्रेडिबल इनिंग्स. मतलब वर्ड्स आर लेस टू प्रेज बोथ द इनिंग्स. शुएब, सच ये है कि वो प्लेयर्स की सिलेक्शन करते हैं अपने मुल्क के लिए, इंडिविजुअल्स के लिए नहीं. जैसे अभी इंटरव्यू आपने दिखाया कि मैं किसकी जगह खिलाऊं, संजू ने प्रूव कर दिया ना. आया ओपनर, परफॉर्मेंस करा बैक टू बैक, मतलब दोनों 100 ही करें उसने. 93 आप बोलें या 89 बोलें, ये 100 के बराबर ही हैं. तो वो प्लेयर्स को पिक करते हैं जो मुल्क के लिए अच्छा खेले. अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में बार बार बोलना पड़ता है, हम प्लेयर्स को रेपुटेशन पे पिक करते हैं, ये नहीं देखते कि कौन हमारे मुल्क के लिए फायदेमंद है. वो चीज़ अगर हमारे में भी ऐसी मतलब सोच आ जाए तो हमारी टीम भी बेहतर हो सकती है. तो संजू की मिसाल सबके सामने है. ईशान किशन ओपनिंग में बहुत अच्छा कर रहा था, आप उसको मतलब इंडिया वाले नंबर 3 पे लिया, तिलक को 5 पे लिया. आज आप देखें ना, लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन अपनाया उन्होंने जी. सूर्या हट गया, अपने नंबर पे छोड़ दिया. हमारा कोच बोलता है नंबर 3 हमारे फिक्स है. कैसे, हाउ कम? लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन से देखे ना, उनके बॉलर भी डिस्टर्ब हुए. आप जो आदिल रशीद की बात करें, आप दुबे जिस नंबर पे आया वहां तिलक वर्मा भी आ सकता था ना जी, नहीं भेजा उसको. तो ये सोच जो है ये बताती है कि वो कितना कीन है, उनका सिस्टम कितना स्ट्रांग है. उनके पास प्लेयर्स हैं, ये बात सही है. हमारे पास इतने प्लेयर्स नहीं है, लेकिन प्लेयर्स वो लिए जाएं जो उस टूर्नामेंट के लिए बेस्ट हो. कामी हमारे, अच्छा चलो हमारे पास प्लेयर्स नहीं है या है वो सेकेंडरी है, तो बनाएगा कौन प्लेयर्स? नहीं, आप मुझे बताओ ना, आप पीसीबी के साथ रहे हो मेंटोर, आप समझते प्लेयर है या नहीं है? देखिए प्लेयर्स हैं, उनको ग्रूम करने की जरूरत तो ग्रूम किया जाता है ना, वो कैसे सिस्टम के साथ किया जाता है. सिस्टम के साथ किया जाएगा, तो लेकिन कंटिन्यूटी चाहिए. बिल्कुल ऐसे ही किया जाता है, ऐसे ही प्लेयर्स बनते हैं. ये तो नहीं है कि आप एक लिस्ट का मैच भी ना खेलें और आप पाकिस्तान टीम में आ जाए. वैल्यू आपने ये बनाई हुई है, 18 की एवरेज है, आप पाकिस्तान टीम में आके खेल लें. T20 में आपके 2 विकेट कीपर है, वनडे टीम अनाउंस होती है, उनमें से एक भी नहीं होता. ऐसे तो नहीं ना प्लेयर बनते, ऐसे तो टीमें नहीं चलती. संजू की जैसे बात है, देखिए हिस्सा नहीं था स्टार्टिंग में टीम का, वो बाहर बैठा हुआ है. ईशान किशन और अभिषेक शर्मा ने इम्पैक्ट डाल दिया पाकिस्तान के खिलाफ जैसे परफॉर्मेंस, कहीं पे भी नहीं. लेकिन मेंटली कितना स्ट्रांग है कि मुझे मौका मिलेगा तो मैं करके दूंगा. मैंने जो गलतियां पीछे की हैं वो दोबारा रिपीट नहीं करनी. वो अपना काम करता गया, गलतियां कम करता गया, और नजर भी आया कि प्लेयर ऐसे बनते हैं, मैच विनर ऐसे प्लेयर बनते हैं जिसको टीम का फायदा हो, अपने पर्सनल गोल नहीं होने चाहिए. तो वो झलक नजर आई है, वो अप्रोच नजर आई है, वो परफॉर्मेंस नजर आई है, जिसकी वजह से आज फाइनल खेल रहे हैं. नहीं तो वेस्ट इंडीज के खिलाफ 97 ना करे तो ये आज सेमीफाइनल भी नहीं खेलते. ऐसे शायद भाई सिलेक्शन पे बात हो रही है, बैकअप पे बात हो रही है, तो आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है
नई सिलेक्शन कमेटी भी अनाउंस की है। 2 पुराने लोग हैं, 2 नए आए हैं, जिसमें सरफराज है और मिसबा उल हक है, और साथ में आकिब भाई हैं, और साथ में उनके हैं असद शफीक। क्या कहना है इसके बारे में आपका? मुकम्मल कर दी सिलेक्शन कमेटी, और अब हमारे फॉर्मर प्लेयर्स को ही आकर हमारी क्रिकेट को सुधारना होगा। सरफराज अपनी जात में अपने सॉरी, मैं आपको यहाँ पे शायद भाई आप सही कह रहे हैं, हमारे एक्स क्रिकेटर्स को जरूर संभालना पड़ेगा, लेकिन यस मैन वालों को वो नहीं संभाल सकते। मैं आपको ये बता दूं, जितने हमारे एक्स क्रिकेटर्स हैं ना, अगर यस मैन बन के वहां पे आएगा वो नहीं कर सकता। अगर कोई आ रहा है तो बोलो भाई मुझे क्लैरिटी दो कि मैं इतने टाइम के लिए आ रहा हूं, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उससे पहले मुझसे कोई नहीं पूछेगा, मुझे टाइम फ्रेम दो। तो एक्स क्रिकेटर भी वो जो यस मैन नहीं है। हाँ, जब आप सिलेक्शन कर रहे हो तो उसी वक्त बोले अगर आपको कोई रिजर्वेशन हो, इसलिए कि या तो आप कन्विंस कर दें या आप कन्विंस हो जाएं। अगर आप नहीं हो रहे कन्विंस, वहीं बैठे, T20 वर्ल्ड कप खत्म हो जाए उसके बाद ना बोले कि मैं ये चाह रहा था और मैं ये नहीं चाह रहा था। आप उसी वक्त बोले, मीटिंग के दौरान बोले कि ये प्लेयर सही सेलेक्ट नहीं हो रहा, बहस करें और फिर उसके बाद बाहर निकलें तो कन्विंस करके निकलें। अगर ये होगा तो हमारी क्रिकेट आगे बढ़ेगी, वरना इसी तरह हम सफर। जी बासित भाई, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सर, कल बात हो रही थी सरफराज की कि वो हेड कोच बन रहा है टेस्ट मैचेस का। मेरा ख्याल है ये वाली जॉब सरफराज के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि वो जिस तरह बच्चों को देखता हुआ आ रहा है ना, तो वो उसका जो इनपुट होगा वो यस्सर नहीं बनेगा। सरफराज के लिए तो मैं बोल सकता हूँ और जुमला भी बोल देता हूँ, सरफराज धोखा नहीं देगा। सही। कामी, आपका क्या ख्याल है इस सिलेक्शन कमेटी? ठीक है, आपके अंदर से हंसी निकल रही है, लेकिन हंसी क्यों निकल रही है? अच्छी बात है, निकलनी चाहिए। हमें पता है ना, आपको पता है, हमें पता है क्या तो एबिलिटी है। मतलब क्या पता है, आप समझते हैं कि जो सिलेक्शन कमेटी अनाउंस हुई है दे नॉट गुड इनफ? मुझे लगता है कि अगर ये सिलेक्शन कमेटी अगर इतनी अच्छी है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में इतने अरसे से हैं, तो हमारी क्रिकेट इस लेवल पे नहीं आनी चाहिए थी, बेहतर होनी चाहिए थी। किस पोस्ट पे नहीं आए सारे ये पहली दफा है सरफराज को निकाल के, बाकी जो नहीं, आपकी मैं बात नहीं कर, मैं ओवरऑल सिलेक्ट आप देखें, आपकी बात नहीं कर रहा हूं। आप ओवरऑल देखें ना कि कितनी जॉब पे आए, किस किस सीट पे आए हैं, क्या वहां पे बेहतरी आई है, क्या वहां पे तीर मार दिए, कौन से ब्रेडमैन दे दिए पाकिस्तान की क्रिकेट को कि यही नजर आ रहे हैं, इसके अलावा कोई और नजर नहीं आ रहा। अच्छा, मैं इसकी और डेप्थ में जाता हूँ। बासित भाई, मैं आपसे पूछता हूँ, क्रिकेटर्स जो हैं, एक्स क्रिकेटर्स, वही रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको दी जा रही है ना, तो उनकी असेसमेंट जो है वो उस तरह नहीं करनी चाहिए कि जब वो खेलते थे पाकिस्तान टीम में, कोई सा भी फॉर्मेट खेलते थे, वो किस माइंडसेट से खेलते थे, तो बड़ा आसान हो जाएगा। फिर तो बहुत सारे लोग नहीं आएंगे। हाँ, तो देखिए, हमें तो एंड गोल क्या है, हमने क्रिकेट को अच्छा करना है। तो क्रिकेट में ये तो नहीं है कि भाई किसने क्या किया था अपने टाइम में या क्या किया, नहीं भाई, वो किस माइंडसेट से खेलता था, उसकी प्रायोरिटी क्या थी। अभी आपने इंडियन टीम की बात की, आपने बोला कि भाई वो टीम के लिए खेलते हैं, तो यहाँ फिर जो टीम के लिए खेलते रहे हैं वो लोगों को आगे आना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। फिर उन लोगों को लाएं भी तो, कि जो यस सर ना हो, जो तो बात करें आंखों में आंखें डाल के। तो वो नहीं करेंगे ना बासित भाई, वो इसलिए नहीं करेंगे कि जब वो क्रिकेट खेले भी तो वो टीम के लिए खेले। हाँ, तो अभी भी वो जो काम करेंगे वो किसी के नीचे लग के नहीं करेंगे काम। यही बात है 90s के जो प्लेयर्स, नहीं ये वाले नहीं, जो 90s के जो प्लेयर्स है ना, उनमें बहुत सारे नाम ऐसे हैं कि वो यस सर नहीं बनेंगे, इसलिए वो लोग आते भी नहीं है। अब मैं 2-3 नाम अगर आप चाहें तो मैं लेना चाहता हूँ, जो मुझे लगता है। शाहिद आफरीदी है, शोएब मलिक है, अपना हफीज है, यूनुस खान है, एक मेरे सीधे हाथ पे बैठा हुआ है, मैं नाम नहीं लूंगा इसका, शायद भाई शायद। तो ये लोग आएंगे तो यस सर नहीं होंगे। मैं मिसबा को पर्सनली बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, आपको पता ही है, वो मतलब कंप्रोमाइज कर जाता है, नहीं करना चाहिए। जिस टाइप का वो प्लेयर था, जिस टाइप का वो कप्तान था, उसको कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। असद शफीक की बॉडी लैंग्वेज ऐसी है, वो कंप्रोमाइज है, इसीलिए मैंने कहा सरफराज कंप्रोमाइज नहीं करेगा। सिलेक्शन कमेटी में आकिब भाई जो हैं वो कंप्रोमाइज कर जाते हैं, कर गया है वो। मेरा नहीं ख्याल, मैं जितना मैं उनके साथ रहा हूँ, अंडर कोचिंग उनके आप भी रहे हैं, मुझे लगता है कि वो कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, परफॉर्मेंस पे, टैलेंट पे कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। और इस सिलेक्शन कमेटी में मुझे नहीं लगता कि इतनी से किसी और की होगी जितनी आकिब भाई की होगी। और लेकिन यहाँ पे जो सिलेक्शन है, इनका अब काम क्या है कि ये जो अब टीम अनाउंस हुई है, क्या यही क्राइटेरिया होगा कि बेहतर होगा, कि विद परफॉर्मेंस होगा? मैं यहाँ पे एक बात ऐड करूंगा माफी के साथ कामी से। आकिब जावेद ने बाबर आजम को नाम नहीं दिया था T20 में,
यहाँ पे वो compromise- कैसे यहाँ पे compromise कर गया फिर compromise वो? हो गया यहाँ यहाँ पे कप्तान और फॉर्म खड़े कोच रहते ना, फॉर्म खड़े रहते। अगर आपको पता था कि टीम जिस नंबर पे वो आपसे मांग रहे हैं, इतनी गेम देखो कामी, जरूर वो नहीं सुनते होंगे, नहीं कंप्रोमाइज करते होंगे, लेकिन गेम सेंस भी तो चाहिए ना आपको। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बदल गई है। ये तो बात की बात है, कोच और कप्तान ने कन्विंस किया होगा कि नहीं हमें चाहिए, चाहे कोई भी हो, कोई भी प्लेयर मांगा हो। लेकिन मुझे लगता है कि आकिब भाई की जो नेचर है ना, बड़ी एग्रेसिव है। हमने देखा हुआ, आपने भी देखा हुआ, मुझे नहीं लगता कि वो 100% कंप्रोमाइज कर जाएंगे। कहीं पे फ्लेक्सिबल होना पड़ता है, कोई भी हो। लेकिन ये जो बाकी है सरफराज को निकाल के, इनको हमने देखा हुआ है। इनके प्लेइंग डे पे भी हमें पता है क्या अप्रोच होती थी, किस माइंडसेट के साथ जाते थे, क्या करते थे। वो पाकिस्तान की क्रिकेट में अभी तक है, वो बाहर नहीं निकल रही। वो नुकसान पाकिस्तान की क्रिकेट में है। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सोचना चाहिए कि कौन सी पोस्ट अब रह गई, किस पोस्ट में अच्छे हैं, उसमें कंटिन्यू 2 साल दे दे, 3 साल दे दे, हर सीट का मजे चखा देंगे। जो बासित जनाब आली, आकिब जावेद को उसी दिन रिजाइन कर देना चाहिए था जब माइक हैसन ने बोला ये सिर्फ मुझे 20 नाम देंगे, चाहे आकिब हो चाहे और कोई भी हो सिलेक्शन कमेटी में, और 15 जो है कोच बनाएगा। उस दिन चारों सिलेक्टर को रिजाइन कर देना चाहिए था। शायद भाई आज टीम सिलेक्शन जो है, टीम जो है सिलेक्टर्स अनाउंस हुए, कल टीम अनाउंस हुई थी जिन्होंने 3 वनडेज खेलने हैं बांग्लादेश में जाके। तो ये क्या है, मतलब एक दिन पहले टीम अनाउंस कर देते हैं और उसके अगले दिन जो है आप सिलेक्टर्स अनाउंस कर रहे हैं। ये इन सिलेक्टर्स ने बनाई है, कोई आपके पास खबर है ऐसी? नहीं, वो तो 2 सेलेक्टर तो आपने अगले दिन अपॉइंट किए। आपने 3 आदमियों के जरिए सिलेक्शन कमेटी कर ली कि कोच आया, आकिब जावेद आए, असद शफीक आए, उन्होंने टीम सेलेक्ट कर ली और एक दिन बाद आप 2 और सेलेक्टर्स ऐड कर रहे हैं। आप आज के दिन टीम अनाउंस कर देते ताकि थोड़ी सी बहस भी होती, मिसबा और सरफराज का भी अपना कंट्रीब्यूशन होता। अब आप अगर बांग्लादेश में आपके डिजायर्ड रिजल्ट नहीं आए तो 2 सेलेक्टर तो साफ साफ कह देंगे ये हमारी टीम। शायद भाई, लेकिन कल बात हो रही थी कि मिसबा एडवाइजर भी है सिलेक्शन कमेटी का। पता नहीं, ये शायद भाई बता सकते हैं। आज ही मेरे पास नहीं, नहीं है। कल तक तो सरफराज हेड कोच बन रहा था टेस्ट टीम। यार मेरे ना 2 जो हैं एक्सपर्ट्स जो हैं, रहने जो दें हमें आप। हंसाते हैं, रहने वो दें आज उन्हें। सो गए हैं। आदि नहीं यार, अस्सलाम वालेकुम। एक सेकंड यार, एक निसार सेकंड। साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और दिल खून के आंसू रोता है, पिछले 62-63 सालों में एक टीम नहीं बना सके। कमाल है, कमाल है। वो 80 की दिहाई वाले 92 वालों को नहीं मानते, 92 वाले मिलीनियल्स को नहीं, और मिलीनियल्स वाले हम जेंजी को नहीं मानते। मैं तो उसको ढूंढ रहा हूं जिसने इसको सिलेक्ट किया था। ये क्या नाम है इसका, ये जो हमारा कोच था? कौन क्या मतलब है कोच जो था? माइक हैसन। कोच? आप भूल गए ना? माइक हैसन। माइक दूसरा। एहसन, माइक एहसन। और ये बैठ के देखे ना, शोएब कैसे तनकीद करता है। आपको नहीं कह रहा, शोएब अख्तर से बात कर रहा हूं। आप परेशान ना हो। नहीं, बिल्कुल भी चूस नहीं। चुकी है इस कौम को ये सारा निजाम। कमाल है भाई, वाह। निसार साहब, आपने कभी क्रिकेट खेली है? और मैंने आज क्रिकेट नहीं खेली। मैं आपको पुराना बताता हूं, जब मरट्टों का मैच हुआ था मुगलों से, उस वक्त का पीसीबी का चेयरमैन मैं था। शुरू से ही साफी क्रिकेट को संभालते रहे, क्योंकि साफत में स्कोप नहीं है। आदि आपको कुछ समझ आ रही है इनकी बातों की? नहीं आएगी, सच किसी को समझ मुझे तो नहीं सिर्फ आना शोर है। की आवाज आ रही है, सिर्फ शोर मच रहा है सर, सिर्फ भाई शोर। किसी को सच समझ नहीं आना है इधर। सर आप मुगलों के दौर में खेलते थे? और मुगल खुद खेलते थे, मैं कहाँ खेलता था। आप थे उस वक्त? मैं चला जाता था कभी कभी। तो वो तो चले गए दुनिया से, सारे नहीं गए, एक रह गया है। शाहिद भाई हैं, ये भी मुगल है। तालियां। शुक्रिया। लेकिन आप देखें भाई, मेरा एक सवाल है कि मैंने तो कल इंग्लैंड इसलिए बोला था क्योंकि मेरी नानी इंग्लैंड से है। बासी भाई, आपने इंडिया क्यों बोला था कल? वैसे क्या मैंने अकेले ने बोला था? नहीं, आपने क्यों बोला था? नहीं, लेकिन आपने अपना जवाब देना है बस। भाई मेरे फादर का ताल्लुक वालदा और फादर हरियाणा से। अच्छा, इसीलिए आप लाहौर शिफ्ट हो गए हैं? हाँ? पंजाबी आती है आपको? पंजाबी नहीं आती। बजे? पार्टीशन के बाद हम आ गए थे इधर। अच्छा, तो फिर वापस जाना नहीं हुआ? नहीं, वीजा नहीं पंजाबी मिला। आती है, लेकिन जब ये वीजा बोलते हैं तो वीजा नहीं किसी को मिला, समझ वीजा नहीं आती। मिला। वीजा नहीं मिला। बासित भाई, पंजाबी समझ आ जाती है आपको? आ जाती। बोलने का थोड़ा सा वो है, हम आपको सिखाते हैं इस ब्रेक में। ब्रेक का टाइम हो गया। नहीं, विल बी राइट बैक।
We are back from the break اور اب ٹائم ہوا ہے ہمارے اسپیشل گیسٹ کا. ان کی بات کریں تو انہوں نے اپنا کریئر جو ہے ماڈلنگ سے شروع کیا, پھر ڈراما انڈسٹری میں آئیں اور بہت سکسیس حاصل کی, اور ابھی تک جو ہے وہ کر رہی ہیں. سنیتا مارشل, السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں, آپ بتائیں. آپ لوگ میں تو کافی بالکل بزی ٹھیک چل ہوں. رہے ہیں روز روز. ہاں جی, زبردست چل رہا ہے. یہ باسط بھائی, کامی, شاہد بھائی, عادی اور مصطفیٰ جو ہے بہت مجھے سپورٹ کرتے ہیں, اور ان کی بدولت جو ہے یہ شو بہت اچھا چل رہا ہے. ان لوگوں کے لیے بھی تالیاں. بالکل ان کے لیے. جی عادی, ہمارا پورا جو سپورٹ ہے وہ شعیب بھائی کی طرف ہے. اس سال اس مہینے کا جو بجلی کا بل ہے ان کے گھر کا وہ بھی ہم نے بھرا ہے, اور ہم اسی طرح آپ کو سپورٹ کرتے رہیں گے. انشاءاللہ بہت آگے جاؤ گے ایک دن آپ. بالکل. 2-4 بلب بھی خراب ہو گئے ہیں, وہ بھی وہ کامی بھائی کا کام ہے. سنیتا, آپ کو کرکٹ میں کوئی دلچسپی ہے؟ بہت زیادہ تو نہیں, لیکن وہی ہوتا ہے نا, ایوری ادر پاکستانی اسپیشلی ویمن, وہ انڈیا پاکستان کا میچ ہوتا ہے تو وہ ضرور دیکھ لیتی ہیں, یا پاکستان کوئی بھی میچ کھیل رہا ہو تو وہ آتے جاتے ضرور دیکھ لیتی ہیں. تو وہ اس طرح سے میرا بھی انٹرسٹ ہے. لیکن آپ کے ہسبینڈ, ان کو بہت شوق ہے؟ ان کو تو بہت شوق ہے, میرے بیٹے کو بہت شوق ہے. جی, وہ شو پہ آئے تھے اینڈ ہی واز کانسٹنٹلی ڈسکسنگ واٹس ہیپننگ ود پاکستان کرکٹ. Oh yes, I also want to know what is happening with Pakistani cricket. اس کو بھی نہیں بتا سکے, آپ کو بھی نہیں بتا پائیں گے. جی بتائیں, آپ بتائیں جی, واٹس ہیپننگ. باسط بھائی, کامی, آپ بتائیں. آپ بتائیں نا, 6 مہینے لگا کے پی سی بی کے ساتھ کیا وجہ؟ یار میں نے 6 ماہ لگائے ہیں, آپ 10 سال سے یہاں پہ ہو. تو یہاں پہ ہے نا, آپ فیلڈ پہ ہیں. یہاں باہر سے زیادہ نظر آتا ہے. لیکن واقعی ایک بات ہے کہ ایک زمانے میں ہماری پاکستان کی کرکٹ ٹیم ٹاپ آف دا ٹیمز ہوتی تھی, لیکن اب بہت ہی برا حال ہوتا چلا جا رہا ہے. کیوں, ایسا کیوں ہے؟ لو بھائی, پھر سے بھیجتی ہو. جی بتائیں نا. وہ ہمارے جو پروگرام کی کلپ ہے نا, ہم آپ کو واٹس ایپ کرا دیں گے, وہ دیکھ لیجیے گا. سنیتا جی, ابھی اگلی بتا بار دینا پاکستان باسط بھائی. اتنا ٹائم تو نہیں ہوتا نا. نہیں, آپ میں ہے ٹائم, بتائیں آپ. پسند ناپسند, جی سیدھے ہمارے یہاں پسند ناپسند زیادہ ہوتی ہے, چاہے جو بھی آ جاتا ہے, سلیکٹرز آ جائیں یا کوچز آ جائیں. اب نیوزی لینڈ کا کوچ آیا ہے, وہ بھی پسند ناپسند کر رہا ہے, تو ٹیم کا حال تو سب سے بڑی بات ہے سسٹم ہی نہیں ہے, سلیکشن پالیسی ہے ہی نہیں ہے, جو پسند آ جائے. یہ گھما پھرا کے نا, یہ گھما پھرا کے جو ہے نا آپ کو جواب ملے ہیں. آدھی صحیح دے گا جواب. سنیتا جی, اگلی بار جب پاکستان انڈیا کا میچ ہو, آپ نے کوشش کرنا ہے میچ نا انڈیا کی طرف سے دیکھیں, تاکہ آپ خوش ہو سکیں اینڈ کے اندر, کیونکہ ہم لوگ بہتر نہیں ہونے والے. آج یہی ہو رہا تھا نا, آج جب نہیں کوئی امید نہیں ہے, بس بہت ہو گئی یار. نہیں, یہ ڈرامے بازی ہے, ڈرامے بازی ہے کہ امید رکھیں بہتر ہو جائے گا, ہم میں بہت ٹیلنٹ ہے. نہیں ہے کوئی امید. ہم عادی ہو گئے, آپ کچھ کر کے دکھائیں گے تب امید رکھیں گے, ورنہ ہم امید. اس بات کو کنڈیم کرتا ہوں میں, لیکن بات آپ ٹھیک کر رہے ہو. یہ ان کا چلتا رہے گا. ہم چلتے ہیں اپنی پہلی بال کی طرف. اچھا, سوال آئے گا, کہتا ہے پاکستان, اور کیا کہتا ہے, یہ کہتا ہے پاکستان میں شادی کے موقع پر لوگ سب سے زیادہ کس چیز کی تعریف کرتے ہیں؟ لڑکیوں کی, کھانے کی. ہاں, اور باسط بھائی, اور پہلے آپ جملہ تو دکھائیں. وہ دہی سامنے ہے نا, میں ویسے پوچھ رہا ہوں. نیچے جو آپ الفابیٹس دیتے ہیں نا. اچھا چلے, میں آپ کو ہنٹ دکھا دیتا ہوں. دکھائیں جی. بے. اچھا, یہ بے کو آپ بی بھی کہہ سکتے ہیں. بی کیا مطلب؟ ہاں, بی سے بھی انگلش کا ورڈ بھی بن سکتا ہے نا, تو آپ بی سمجھے. مطلب برائڈ کی تعریف. دیکھیں, یہ جو ہے نا فرسٹ ورڈ, یہ آپ کو ہنٹ ملا ہے. اوکے. تو بے سے, اور 3 اور حرف ہیں اس کے. نہیں 3 اور نہیں, جملہ ہے, ایک آپ نے سینٹینس کمپلیٹ کرنا ہے. جیسے بلیوں کی تعریف کرتے ہیں, تو برائڈ کی تعریف. برائڈ بھی یہ نہیں ہے, یہ نہیں. اچھا, بینکویٹ ہو سکتا ہے. بینکویٹ کی بھی ہاں تعریف کرتے ہیں لوگ. ہاں, کیوں نہیں. اندر گھستے ہی سب سے پہلے کہتے ہیں واہ واہ کیا شاندار بینکویٹ کو سجایا ہوا ہے. بالکل. تو میں لاک کروں اس کو. اچھا, بیویوں کی تعریف بھی کرتے ہیں, یار اس کی بیوی بہت اچھی لگ رہی تھی یار. یہ تو آپ کی شادی ہوئی ہے, یہ تو اپنے آپ کو اپنے والی بات کرتا ہے ہر جگہ. اچھا, جب آپ نے بولا عادت ہے کہ تعریف کرتے ہیں, کامی نے فوراً یوں کیا. نہیں, بوٹیوں کی تو نہیں کرتے. بوٹیوں کی تعریف ہے نا, کہ بوٹیاں زیادہ ہیں یا بوٹیاں کم ہیں. داداؤں کی تو تعریف کریں گے, لیکن چلیں اس کو بینکویٹ پہ لاک کر دیں فی الحال. چلے لاک کریں جی. بینکویٹ. ویل ڈن آدی, آپ نے اچھا ہنٹ دیا. سیکنڈ دکھائیں جی. دادیوں کی. غرارے پہن کے آتی ہیں, دادیوں کی ہو سکتی ہے. ہاں بالکل, دادیوں کی ہو سکتی ہے. کل ہم آ گئے, کیا دادیاں تھیں. بالکل, ایسے بھی نہیں ہوتا. ڈریس کی.
ड्रेस ड्रेस हाँ जी ड्रेस दाल दाल कैसे दाल आएगा? से ड्रेस दाल से कैसे ड्रेस आएगा? ड्रेस हो जाएगा हाँ वो तो डाल होगा ना तोय वाला दाल दूल्हा दुल्हन हाँ ये दुल्हन अच्छा की। है दुल्हन दूल्हा दुल्हन दूल्हा दुल्हन दूल्हा और दुल्हन की तारीफ लॉक करूं? हाँ दिखाएं जी। दुल्हन दुल्हन के के मेकअप मेकअप की की तारीफ। मेकअप की। एक ही बात है वाह बहुत भाई। अच्छे। तालियां वैसे बजानी चाहिए हमें सुनीता के लिए, बहुत अच्छा खेल रही है। मैंने देखा इस शादी में दूल्हे को कोई लिफ्ट ही नहीं करा रहा। वो बराबर में शायद बैठा करा हुआ। दे शायद करा दे। मेरा दोस्त नेक्स्ट एक बार- हिंट दिखाएं जी। खाना काफ। खाना खाने की। ये तो खाना obvious है। खाना 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 नहीं है खाना नहीं है नहीं है नहीं जवाब नहीं है। कुर्सियां कुर्सियां कुर्सियों की क्यों तारीफ करेंगे कब्बे कब्बे कब लॉक करूं इसको मैं? खाना खाने- खाना हाँ खाना। यही है करें यही है जी। जवाब हाँ, यही खाने है। की बासु भाई अच्छा आपके है। वलीमे पे क्या था खाना? वलीमे में एक रूटीन वाला था। क्या था? एक डिश रूटीन में क्या था याद है आपको? मटन कुरमा और बिरयानी। मटन कोरमा और बिरयानी। और बिरयानी रायता सलाद कोल्ड वो तो ड्रिंक साथ होता ना यार वो बच्चों के लिए हमने अलग से रखा हुआ था। अच्छा ठीक है। वो पूछ रहे हैं जी निसार साहब आप पूछ रहे हैं, कह रहे हैं मीठे में क्या था? मीठा याद नहीं है भाई मुझे। मीठा नहीं याद रखते ये मीठा नहीं रखते जी निसार साहब याद। आप मेरे ऊपर रख के सारे सवाल पूछ लो। नेक्स्ट हिंट दिखाएं जी। फिर से दाल फिर दूल्हा फिर से था। दूल्हा दूल्हा की दाल भी तारीफ। बनाते हैं। हाँ दूल्हा किसके? दूल्हा रह दूल्हा। गया ना दूल्हा दूल्हे का ड्रेस आखिरी ऑप्शन है दूल्हा। दूल्हे का ड्रेस दूल्हा पहुंच ही इस जाता है, यही दूल्हे बड़ी को बात किसी है। ने लिफ्ट ही नहीं दी है। दूध दही की भी तारीफ करते हैं लोग अक्सर नहीं नहीं मशवरा दूल्हा देना शाहिद भाई को मशवरा दे। दूल्हा। दूल्हा है ना, अरे दूल्हा तो है, दूल्हा दूल्हा क्या? दूल्हे के कपड़े दूल्हा कपड़े दूल्हा बोले। के कपड़ों की है, शाहिद दूल्हे भाई के कपड़ों शर्मा की- ऐसे रहे जैसे दूल्हा खुद हो। दूल्हा के कपड़े दूल्हे के कपड़े दूल्हे के कपड़े काम ये- आपने अपनी शादी पे क्या पहना था? शेरवानी पहनी थी या बिल्कुल। सूट पहना था? शेरवानी पहनी थी शेरवानी पहनी थी। कैसे प्यारे लग वलीमे रहे पे होंगे भी। हैं? माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे होंगे उस टाइम तो सारी तो लग इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? नहीं अगर आप मतलब किसी की मुझे तारीफ करें तो हंसना तो नहीं चाहिए ना? नहीं नहीं मैं मतलब ऐसे नहीं कुछ- जो एक्चुअल पिक्चर आ रही है वो क्या आ रही है? नहीं नहीं नहीं, cute बताएं, है, cute बताएं। है। नहीं नहीं क्यूट बताएं। नहीं क्यूट वो है। हाँ क्यूट है माशाल्लाह। शायद भाई आपने क्या पहना था? मैंने शेरवानी पजामा और कुर्ता किसका? अपना नहीं मतलब ब्रांड पूछ रहा था ब्रांड यार शोएब भाई ब्रांड पूछ रहा सुनीता आपके मियाँ ने क्या पहना था शादी के दिन? बारात वाले दिन तो सूट पहना हुआ था लेकिन वलीमे वली- वाले दिन शेरवानी पहनी थी। शेरवानी पहनी हुई थी। आदि को सजेस्ट करें अगर इनकी इंशाल्लाह शादी हुई इंशाल्लाह तो इनको क्या पहनना मैं तो चाहिए? शरारा पहनूंगा भाई शादी के हिसाब से ठीक बात है। नहीं तो फिर बंदा कुछ और पहनेगा। नहीं नहीं शरारा कंफर्टेबल होता है ना यार आजकल वैसी बैगी का जमाना है। जी सुनीता क्या लॉक करें फिर हम? दूल्हा दूल्हे के का- कपड़े दूल्हे के कपड़े दूल्हे के कपड़े दिखाएं जी। दूल्हे के लिबास। लिबास बहुत शाहिद अच्छा भाई, खेली। वाह। वाकई में सही तालियां बजनी यार चाहिए बहुत आज। अच्छा खेला है बहुत अच्छा खेला है यार आज हम दूसरी बॉल की तरफ आपको लेके जाएंगे लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक ले लें। विल बी राइट बैक, डोंट गो अवे। वी आर बैक फ्रॉम द ब्रेक और पहला गेम सुनीता आप बहुत अच्छा खेली। हम अपने सेकंड गेम की तरफ चलते हैं। मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर दूं। आपके पास एआई पिक्चर्स जो हैं वो हम आपको दिखाएंगे, आपने गेस करना है कि ये कौन है। ओके रेडी हैं आप? दिखाएं जी पहली पिक्चर। फैसल वाडा फैसल क्या चीज आपके दोस्त हैं? अच्छा मिल रहे हैं फैसल वाडा से मेरा। यार सुनीता जी ने बताना है ना फैसल आपने तो वाडा बताना है। है। आप डेली बैठते हैं आप उन्होंने एक बोलते दिन हैं आना हेल्प है। करनी है। अभी तो बोला ही नहीं आप अच्छा हेल्प करनी है उनको, आपने बताना है। आप कर अच्छा फैसल वाडा। तो आवाज तो जारी है ना ये। मुझे लग सुनीता रहा है आपको लगता है कि जो बासित भाई कह रहे हैं ये वो हैं? मुझे नहीं पता। मुझे तो Politician है। अब दानिश नवाज लग रहे हैं मुझे ये आदि दानिश आदि से नवाज। पूछ लें। दानिश नवाज आई लग थिंक रहे। बासत भाई ठीक हैं। बासी भाई ठीक है फैसल वाडा अच्छा बासित भाई ठीक है, आप नहीं ठीक? नहीं ठीक कहा है उन्होंने। शायद मुझे क्या ये कहते हैं? बिलावल क्यों लग रहे हैं? बिलावल भुट्टो साहब भाई हाँ ये भी वहां की में लग रहे हैं बिलावल अगर भुट्टो वो साहब क्या थोड़े लॉक से करूं मैं?
थोड़े से अगर मोटे हो जाएं और तो ऐसे नहीं लगेंगे? अब वो मुझे नहीं पता, वो तो अभी पतले हुए हैं। अभी बस तो समझे बहुत क्लिप पतले तो हो गए। वायरल हो गया ये। हाँ जी, बिलावल भुट्टो साहब हो सकते हैं, सुनीता जी कह रही है तो। नहीं मगर मैं फैसल वापडा साहब फैसल वावडा साहब भाई, जी दिखाएं जी। वेल डन बासित भाई। वेल डन। मैंने नोट किया है वो गिबली में ज्यादा अच्छे लग रहे थे। लेकिन आपको भी वेल डन बोलना चाहिए कि आपने जो है कॉन्फिडेंस देखा बासित भाई का, और एक्सप्रेशंस आपने जो है। हाँ, उन्होंने तो छूटते ही जवाब दे दिया ना। हाँ, ये बिल्कुल। छूटते ही जवाब दे बासित देते भाई। जो चीज दिखाओगे। क्या बात है बासित भाई, काश आप कामी को भी जवाब दे दिया करें। वो दिया तो था, वो आपने देखा ही है, वो सुना। रहने दे, वो मैंने देख लिया क्लिप। दूसरी पिक्चर की तरफ चलते हैं। आप बताएं बासित जी बासित भाई जल्दी से बताएं। आप बोले फैसल बताएं। वावडा की कजन। ये काम ही बताएगा। ये काम ही बताएगा। शाहिद भाई, ये ड्रामा सबसे ज्यादा कामरान देखता है। लो शायद भाई वाह, ये ड्रामे ये ऐसी आप कौन तस्वीरों के होते हैं। गैस सही। करना है ना। नहीं, और नहीं, क्या नहीं, मैं नहीं, सही नहीं। पिक्चर दिखा के आपको ये पूछिए कौन है? नहीं मैं नहीं हूँ। नहीं, इयरिंग आपने पहने हुए हैं, तो मुझे तो ये तो वाकई पहचानी नहीं जा रही। हाँ ये एआई ने बहुत ही डिफरेंट तस्वीर हाँ किसी जी, की बना दी। ये एआई ने भी सोते हुए में बनाई होगी। कुछ ऐसा ही लग रहा है। आयजा खान, तुक्का लगा ले कोई। सना तो नहीं? सना, मैं भी कंफ्यूज हो गया हूँ। लग रही है, पता नहीं। चले मैं आपको हिंट दे देता हूँ। हाँ के से नाम इनका शुरू होता है। के से? के से। कोबरा। कुबरा तो के से बिल्कुल तो कुबरा नहीं नहीं, लग रही। के से सिर्फ कुबरा है। और कौन है? के से कोबरा। थोड़ा दिमाग घुमाए ना। कामरान अकबर भी नहीं हो सकता के से। के से कौन? कोबरा। और कौन है? के किरण। से? किरण तो कोई है कौन ही नहीं। किरण? जो शायद जो यहाँ पे जो शाहिद भाई है ना, इनका पूरा नाम है शाहिद हाशमी। हाशमी। ठीक है, तो किंजा हाशमी। किंजा हाशमी? अब मैं किंजा ये- हाशमी। इससे ये ज्यादा नहीं, ये बिल्कुल ये अगर किंजा किंजा नहीं हाशमी लग है तो रही। मैं इस शो में नहीं बैठना चाहता। हाँ प्लीज जाए, उठे, काफ से तो फिर हाँ। निकले। अगर ये किंजा है तो मैं भी शाहरुख खान हूँ फिर। हाँ ये किंजा हाशमी नहीं है। नहीं भाई, गिबली ने बनाया अगर है ये ना। किंजा है तो मैं कैटरीना कैफ हूँ फिर। हाँ, अगर ये किंजा है तो मैं माइकल जैक्सन। लॉक कर दे। आप लॉक अगर कर ये दो। किंजा है तो ये शाहिद भाई है। करे जी लॉक। यार ये नहीं, ड्रेस के अलावा कुछ भी नहीं मैच हो रहा। हाँ, कल से मैं नहीं आऊंगा, इतने बड़े झूठ मैं नहीं बोल सकता। तौबा। तो यार वो देना नफल पढ़ लें यार। थोड़ा आसान वाला दिखाते हैं आप। आसान वाला। दिखाएं जी नेक्स्ट। शोएब मलिक। सरफराज नहीं है ये? अल्लाह ना करे ऐसे कान मेरे हो। नहीं नहीं, बताएं कौन है? ये कान आगे की तरफ क्यों जा रहे हैं? इनको काम है। जो मुझे हमें लग रहा है समझ में मुंह आ के रहा है आगे वो आगे नहीं कान। होगा। सरफराज नहीं है? नहीं सरफराज नहीं। कौन है? ये उसामा इसमें ना में- सुनीता, ये जो दो लोग हैं ना, उसामा ये आपकी में- हेल्प कर सकते हैं। उसामा में सलमान अली आगा। हसन अली तो नहीं है? फातिमा कुरैशी। शाहिद भाई बताएं आप। अगर उनकी गालें भर जाए। फकर को तो पहले, हाँ यार आप दोनों कैसे क्रिकेटर हो? आप क्रिकेटर नहीं पकड़ पा रहे यार। नहीं, देखो, हमें AI जो की समझ में आ रहा है ना, तस्वीरें दो नाम कैसी समझ में आ रहे हैं। ये उसामा क्रिकेटर मीर है ना। हाँ, और लेकिन वो यही अपना आपको दोनों जो जिहादी। वो नहीं पहचान पा रहे तो आप सोचें कि ये AI जो ने उसामा कैसे मीर मेरा लग रहा है। दोस्त- उसामा मीर, उसामा हाँ जी, मीर। इस नाम के शदाब साथ तो आप नहीं, जाएंगे। शदाब। दिखाएं जी। शदाब है। उसामा मीर। बिल्कुल सही। कामी भाई सही। तेज Well है। done यार, कामी भाई बहुत तेज है। अच्छे। ये है, वेरी ऑब्वियस। कल आए थे ये तो मेरे फैमिली डॉक्टर लग रहे हैं। सीएम सिंह। सीएम सिंह। कौन? क्या नाम शाह है? साहब, शाह साहब, शाह साहब। मुराद अली शाह साहब। मुराद अली शाह। मुराद अली शाह साहब। नाम भूल गया आप? मुराद अली शाह साहब। वाकई? सुनीता एक यार आप बता दो प्लीज। ठीक है, मुराद अली शाह साहब के साथ चले जाते हैं, लेकिन ये एआई की जो तस्वीरें हैं ये बिल्कुल नहीं, ये अगर वही आगे ना तो ये तो लग रहे हैं। जाहिर है उनके शनाख्ती कार्ड की लग तो रहे हैं ना लगानी शायद चाहिए। ये। दिखाएं जी। नहीं, आप उनकी शक्ल देखें, उनकी देखें, कहीं से नहीं लग रहे। देख ले। कपड़े सिर्फ यहाँ पे सेम है जरा- ना? यहाँ पे मुझे थोड़ी ऊपर मूछें चली भी गई थी वो बस। नहीं है, मुझे भी डिफरेंट है। बहुत बहुत शुक्रिया सुनीता हमारे शो पे आने के लिए। Thank you. थैंक यू। यही था आज का सफर। कल मिलेंगे आप लोगों से। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।